फहराओ रे, झंडा मसीह का लहराओ रे. ये हमारा कर्तव्य है. This is our duty to tell others about Christ. Amen. Hallelujah. Just want to welcome you all in Jesus name. प्रभु यीशु मसीह के नाम से हर एक को स्वागत करते हैं आज एक बार फिर से. And those that are joining us online, we just want to welcome you all in Jesus name. And I pray that the presence of the Lord will be with you. His Holy Spirit will touch your hearts this afternoon as you worship Him in spirit and in truth. Amen. Hallelujah. Thank you, Jesus. Let's look to the Lord in prayer at this moment. And I ask Stephanie to lead us in a word of prayer. Let's all pray. Dear Heavenly Father, we come before you today, God. Lord, we thank you for all that you've done in this week, God, to bring us safely back into your house again, Lord, to praise and worship you, God. And Lord, as we put everything aside to focus on you, God, I pray that you touch each and every one of us, God Almighty. And Lord, I pray for a special anointing on us, God, those who are here and those who are watching on Facebook right now, God Almighty. Lord, we just thank you for everything, Lord, and we worship you. In the name of Jesus Christ, we pray, amen. 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 Hallelujah. Thank you, Jesus. Thank you, Jesus. लंबा सफर जिंदगी का सच्चाई कोई जाने ना रहे. हम लोग की जिंदगी में we don't know what's going to happen next. कल के तो भूल जाओ, but next moment में क्या होगा we don't know. But we depend on the Lord and He's going to take us through. Amen. Hallelujah. कौन है राजाओं का राजा, कौन है प्रभुओं का प्रभु, वो है सिर्फ यीशु मसीह.
दुनिया का बादशाह कौन है? यीशु है उसका नाम। हालेलुया। धन्यवाद देते प्रभु को, धन्यवाद हो प्रभु। हालेलुया। Thank you Jesus. Thank you Lord. Thank you Lord. कैसे मैं तेरी महिमा गाऊं, शब्द भी कम पड़ जाएं। लिखने बैठी हूँ तेरी बातें, कागज भी ना समाए। कैसे मैं तेरी महिमा गाऊं, शब्द भी कम पड़ जाएं। लिखने बैठूं तेरी बातें, कागज में ना समाए। आश्चर्य तेरे जग में है इतने, कैसे मैं उनको बयान करूं। आश्चर्य तेरे जग में है इतने, कैसे मैं उनको बयान करूं। तेरी प्रशंसा करूं, तेरी प्रशंसा करूं। धन्यवाद कहूं, धन्यवाद कहूं। किससे करूं मैं तेरी तुलना, कौन है तेरे समान। तूफान भी सुनकर तेरी माने, सागर भी हट जाएं। किससे करूं मैं तेरी तुलना, कौन है तेरे समान। तूफान भी सुनकर तेरी माने, सागर भी हट जाएं। आश्चर्य तेरे जग में है इतने, कैसे मैं उनको
समर्पण मेरी कबूल कर ले. Hallelujah. It is a total surrender unto the Lord. जब हम अपने आप को उसके हवाले करते हैं तब वो हमारे जीवन में वो काम कर सकता है. It's just like this. When you have somebody as your friend and you allow your friend to do something for you, only then your friend will be able to do something for you. But if you stop him or her, they will not be able to do anything for you. It is the same with the Lord. When you stop the Lord from doing things in your life, He won't be able to do anything. We need to surrender ourselves. When you surrender to your friend, only then things start happening. It is the same with the Lord. Hallelujah, Jesus. Thank you, Jesus. Thank you, Lord. Thank you, Jesus. This is my desire to
I give you my heart, I give you my soul. I live for you alone. Every breath that I take, every moment I'm awake. Lord, have your way in me. Lord, I give you my heart, I give you my soul. I live for you alone. Every breath that I take, every moment I'm awake. Lord, have your way in me. Lord, have your way मौत से है बचाया तूने, जीवन नया है दे दिया। नाम लेकर पुकारा मुझे, कृपा से मुझको भर दिया। करना भलाई तेरी सदा रहेगी मुझ पर। तेरी विश्वास योग्यता देखूंगा मैं उन पर मैं हाथ उठाकर गाऊंगा, यीशु तेरा नाम रहे ऊंचा। मैं हाथ उठाकर गाऊंगा, यीशु तेरा नाम रहे ऊंचा। हाथ उठाकर गाऊंगा, यीशु तेरा नाम रहे ऊंचा। आदर और महिमा हो तेरी, तू ही हमारा खुदा। पूरी हो तेरी मर्जी, आए तेरा राज मैं हाथ उठाकर गाऊंगा, यीशु तेरा नाम रहे ऊंचा। मैं हाथ उठाकर गाऊंगा, यीशु तेरा नाम रहे ऊंचा। मैं हाथ उठाकर गाऊंगा, यीशु तेरा नाम रहे ऊंचा। 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 Hallelujah, Jesus. तेरा ही नाम ऊंचा उठाएंगे प्रभु, हम हाथ उठाकर गाएंगे प्रभु, धन्यवाद देंगे प्रभु, तू महान परमेश्वर है। Lord, we'll raise our hands to worship you, God Almighty, as a sign of total surrender, oh Father. We thank you this afternoon, Lord, for your loving mercy in our lives, oh God Almighty. We thank you for everything that you have done for us, Lord, throughout the week, oh God Almighty. I pray for each and every person that is here, Lord, and those that are watching online, oh God, those that will be watching later on, oh God. I just commit them all into your hands right now in Jesus' name. In Jesus' name, in Jesus' name.
May your Holy Spirit minister to them, Lord. Know their needs, the desires of their hearts, Lord. I pray, Lord, that you fulfill it in Jesus' name. I come against every works of Satan. I bind every powers of darkness in Jesus' name. Your word declares, Lord, whom the Son has set free is free indeed. And we believe and we receive it in Jesus' name. Hallelujah. Those that are sick, Lord, that you touch them even right now, Lord. Even right now, Lord. And heal them, Lord, from the crown of their heads to the soles of their feet, O God Almighty. In Jesus' name we pray. In Jesus' name we pray. Amen. 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 You may be seated. Hallelujah. धन्यवाद देते परमेश्वर को. Amen. Hallelujah. महान परमेश्वर है, राजाओं का राजा, प्रभुओं का प्रभु. वो आज हमारे साथ है, हमारे बीच में है. By His Holy Spirit. उसने कहा है कि जहाँ 2 या 3 उसके नाम से जमा होते हैं, वहाँ पर वो जरूर से रहता है. And He is here in our midst this afternoon. And I thank the Lord for He is true to His word. Amen. Just want to welcome you all in Jesus' name. Hallelujah. Thank you, Father. Amen. At this time we'll hear the message by Ezekiel. Let's welcome him. Praise the Lord. आज हम लोग कुछ खास देखेगा और काफ़ी चीज़ अभी हम लोग सुन लिया. अगर आज हम लोग जो गीत रहा और उसके अगर लिरिक्स लोग अच्छा से देखा है तो उसमें एक कॉमन चीज़ हम लोग के काफ़ी देखे के मिला कि जब हम लोग परमेश्वर के सेवा करता है अपन दिल से. अगर हम लोग एक लिरिक्स यहाँ पर लेके आएगा जो हम लोग के मिले हैं, दिस इज़ माई डिज़ायर, और उसके सेकंड वेस देखेगा तो काफ़ी चीज़ यहाँ पर समराइज करे हैं कि अगर हम लोग पूरा हृदय से परमेश्वर के महिमा करता है और उसके साथ साथ रहता है तो हम लोग के पास एक नवा रिलेशनशिप रहे उसके साथ, और वो हमें बचा कर रखता है, हमें सब चीज़ से निकाल कर अलग रखता है. तो हम लोग जब ये मैसेज तैयार करता था तो एक व्यक्ति हमारे दिमाग में आया. नोआ, वी ऑल नो हु नोआ वाज. और एक सवालात हमारे दिमाग में आया कि क्या होता अगर नोआ वाज नॉट फेथफुल. अगर नोआ के जो परमेश्वर के साथ रिश्ता रहा वो अगर सही नहीं रहता तो आज ये जो धरती है आज कौन तरह रहता. अगर हम लोग नोआ के बारे में जाकर देखता है तो हम लोग बुक ऑफ जेनेसिस चैप्टर 6 वर्स 5 और 6 को यहाँ पर देखेगा. और नोआ के बारे में अगर हम लोग देखता तो उस समय वहाँ पर जो लोग रहा वो पाप में डूबे थे. हर एक व्यक्ति पाप में डूबा था. और नोआ जो था, he had a desire that he will honor God. उसके पास उन्होंने एक निर्णय बनाया कि वो परमेश्वर के भय में जिएगा. उनको कोई तरह का इन्फ्लुएंस नहीं किया गया था कि तू परमेश्वर के भय में जियो, क्योंकि जो और व्यक्ति थे उस समय, they were living in a world of sin. लेकिन नोआ ने he decided that he will follow Jesus. क्या आज हम लोग के कोई पुश करता है परमेश्वर के साथ साथ रहने की, उसका सेवा करने के लिए, कि आज ये हमारा जो एक चाहत है परमेश्वर के सेवा करने के लिए, क्या आज हम लोग एक निर्णय अपने आप से बनाया, एक कमिटमेंट हम लोग अपने आप से बनाया है. आज जो टॉपिक है हमारा वो है इंडिविजुअलिटी एंड यूनिटी. दो विषय में बात करेगा.
तो इंडिविजुअलिटी के बारे में मैं पहले देखना चाहता हूँ। तो यहाँ पर जो नोआ है, he separated himself out because ये महसूस किया कि वहाँ पर जो लोग हैं वो पाप में डूबे थे, and he decided कि जो मेरा जिंदगी है वो परमेश्वर के भय में जिएगा, वो परमेश्वर के लिए सही होगा। और फिर जब परमेश्वर ने ये निर्णय बनाया कि यहाँ पर हम लोग जेनेसिस चैप्टर 6 वर्स 5 और 6 में देखेगा, तो यहाँ पर बताता है कि जब परमेश्वर ने देखा, तो यहाँ पर अगर पढ़ेगा, and God saw that the wickedness of man was great in the earth, and that every imagination of thought of his heart was evil continually. And it repented the Lord that he had made man on the earth, and he grieved him at his heart. तो वो जब हर एक व्यक्ति को देखा, और यहाँ पर बताता है कि it grieved his heart. आज हम लोग के लाइफ जब परमेश्वर देखता है, आज हम लोग ये सवालात हम खुद से करें कि आज जब परमेश्वर हमारे जिंदगी देखता है, ये आंसर हम आपके लिए नहीं सकता है करे कि जब परमेश्वर हमारे जिंदगी देखता है, is it grieving his heart that he made us, or is he pleased with us? लेकिन जो ये ग्रीवनेस यहाँ पर बताता है परमेश्वर, उसमें आगे चल के हम समराइज कर देगा। वहाँ पर एक ऐसा व्यक्ति था जिसको परमेश्वर ने देखा, and it pleased him, और उसका नाम जो था वो नोआ रहा। और नोआ ने जब परमेश्वर ने नोआ के जिंदगी को देखा, तो उसको उसमें से चुना। So before God decided to destroy everything, he picked Noah and his family out and put them in an ark. वो आग जो रहा वो उनके लिए एक सेफ प्लेस था, उनको जो डिस्ट्रक्शन में से निकाल कर लेकर आकर उनको एक सेफ प्लेस पर रखा। आज जब हम परमेश्वर के साथ साथ चलते हैं, तो जो भी दुख मुसीबत में हम रहते हैं, he takes us out and puts us in a safe place. This is Psalms chapter 91 हमें बताता है, he keeps us under his wings. तो वही चीज परमेश्वर ने यहाँ किया नोआ के साथ, वो उनको उठाकर लेकर आया और आग में रखा। और जब वो आग को देखता है, तो God gave a specific size of ark for Noah to build. ये हम जेनेसिस में पढ़ सकते हैं, ये सेम चैप्टर 6 और 7 में। और वो नोआ को जब वो आग के साइज बताया, वो उतना बड़ा आग रहा कि all the animals could fit in there, Noah's family could fit in there. अगर शायद हम लोग देखता उस समय अगर और से भी लोग फेथफुल रहता, तो परमेश्वर उनके लिए भी जगह तैयार करता वो आग में, if God had decided to take that route. लेकिन अगर आज ये सवालात हम लोग करें कि नोआ अगर फेथफुल नहीं रहता तो क्या होता? The first thought that came into my mind कि there would be no ark, because God के नोआ को वहाँ से निकालना नहीं होता, और शायद सब कुछ खलास हो जाता, शायद हम नहीं यहाँ बैठा रहते, तुम नहीं यहाँ बैठा रहते। But I don't know what God's plan would have been. That's something that was my first thought. But like I don't know परमेश्वर उस समय क्या निर्णय बनाता। लेकिन यहाँ पर हम लोग के क्या सीखने को मिलता है कि Noah's faithfulness made God pick him out, and then there was a recreation. उसके कारण आज हम तुम यहाँ पर बैठ सकते हैं। आज हमारे जिंदगी भी जब परमेश्वर के साथ सही होता है, तो हम अपने जिंदगी से दूसरों के भी भला कर सकते हैं। Others benefit from our life as well. नोआ के बारे में हम देखता है, नोआ खुद आग के अंदर गया, और उनके जो बच्चन थे वो भी साथ जा सके, because Noah was faithful. तो
जब हम अपने लाइफ से परमेश्वर को महिमा करते हैं, when we make that desire to honor God, He picks us out, and because of us, others can benefit as well. तो आज सबको ई पोर्शन में से हम बताना चाहता है कि आज हम लोग देखें नहीं कि कोई और अपना जिंदगी कैसे जीता है, बिकॉज नोआ के समय अगर वो देखता कि हाउ the other people were acting, और अगर वो ट्राई करता उनको लाइफस्टाइल में मैच करने के लिए, तो आज शायद यहाँ पर जो हालात है कुछ डिफरेंट ही रहता. लेकिन नोआ मेड अ डिसीजन टू ऑनर गॉड. आज हम लोग जब परमेश्वर को सेवा करता है, तो थ्रू अस वी कैन मेक अ लॉट ऑफ डिफरेंस. वी कैन चेंज how things are around us. We can make a difference in our family. We can make a difference in our friends' life. We can make a difference in life of people around us. तो आज जब हम लोग परमेश्वर के साथ रहता है, then there is always a different outcome, जैसे हम लोग नोआ के लाइफ में देखता है. हम लोग अगर यूनिटी के बारे में देखेगा, तो we'll see another example जो हमें मिलता है बुक ऑफ जेनेसिस चैप्टर 11 वर्स 4 में. एक्चुअली चैप्टर 11 वर्स 1 से लेके अगर 8 ले हम लोग देखेगा तो स्टोरी कंटिन्यू हुए, बट यहाँ पर चैप्टर 11 वर्स जेनेसिस चैप्टर 11 वर्स 4 को हम देखना चाहता है, जो बतावे है टावर ऑफ बेबीलोन के बारे में. यहाँ पर परमेश्वर बताए, अगेन समराइज करता है, बट अगर हम लोग पूरा चैप्टर 11 पढ़ेगा तो पूरा स्टोरी हम लोग के मिल जाए यहाँ पर. और यहाँ पर बताए, एंड दे सेड गो टू लेट अस बिल्ड अस अ सिटी एंड अ टावर whose top may reach unto heaven, and let us make us a name, lest we be scattered abroad upon the face of the whole earth. तो यहाँ पर जो इंसान लोग रहा, what they were planning to do was जो एथ परमेश्वर ने बनाया था उनको लिए, उनमें से वो मिट्टी निकाल कर वो अपना एक ओन शहर बनाना चाहता था, अपना ओन एक सिटी बनाना चाहता रहा, और उसमें एक बड़ा सा टावर बनाना चाहता रहा. So what their intention was कि वो परमेश्वर को क्रिएशन में से निकाल कर वो अपना एक और एक क्रिएशन बनाना चाहता रहा, और वो क्रिएशन को जो क्रेडिट है वो अपने आप को देना चाहता था. तो अगर हम लोग इसके डीप में जाकर देखते हैं, they wanted to eliminate God out from the creation, and they wanted to insert themselves into creation. वो क्रिएशन का जो क्रेडिट है वो अपने आप को लेना चाहता रहा. और अगर हम लोग आगे जाकर देखता है, तो यहाँ पर अगर हम समराइज करेगा, तो जब परमेश्वर ने देखा कि they were taking God's creation out और उसमें ले जाकर अपना own creation डालता है, God saw कि वो जो एकताई में मिलकर काम करते थे, they were going to make something that was impossible into something that was possible. यहाँ पर हम लोग देखता है उन लोग का जो एकताई रहा, उन लोग एकताई में तो काम करता रहा, लेकिन उन लोग जो कार्य करता रहा वो सही कार्य नहीं रहा. लेकिन अगर हम लोग इस स्टोरी में से कुछ पॉजिटिव निकालना चाहता है, तो जब हम लोग एकताई में मिलकर काम करते हैं, तो हम लोग जो इम्पॉसिबल है उसको भी पॉसिबल कर सकते. अगर आज हम तुम उसी तरह एकताई में मिलकर जब परमेश्वर के काम करता है, as friends when we come in unison, as family when we come in unison, हम लोग जब मिल के परमेश्वर के लिए काम करता है, things happen, there is a result that starts forming. जब हम लोग एकताई में मिल के परमेश्वर के सेवा करता है, हम लोग और से जस्टी रिजल्ट लेके आ सकता है अपने जिंदगी में. तो यहाँ पर हम लोग देखता है जैसे वो लोग एकताई में काम करता रहा, लेकिन वो लोग एकताई में they were doing something that was not right in the sight of God,
And what God decided to do was उन लोग के जो एकताई है उसको तोड़े ताकि वो जो गलत काम करते हैं वो वहीं पर रुक जाए। और परमेश्वर ने आगे क्या किया, वो उनका जो लैंग्वेज है वो बदल दिया ताकि वो लोग का जो एकताई है वो रहे नहीं। जब हम एकताई में मिलके परमेश्वर के लिए काम करता है तो वो एकताई कोई तोड़ना चाहता है। जब हम लोग एकताई में मिलके परमेश्वर के सेवा करना चाहता है तो वो एकताई कोई तोड़ना चाहता है। और वो कौन है? वो शैतान है, हमारे जिंदगी में आता है and he tries to break that unison। और वो कैसे हमारे एकताई को तोड़ता है? He focuses individually। कोई के बताता है कि this is ये जो एकताई में हम लोग परमेश्वर के काम करता है, this is not where you're supposed to be। परमेश्वर आकर बताता है you're supposed to be somewhere else। जैसे ईव को आकर बताया कि परमेश्वर के तुम्हें जो बताया है कि ये फल नहीं खाओ, क्या तुम सोचता है ये सही है? ये फल अगर तुम खाएगा तो तुम्हारा बेनिफिट रही। And what it did was वो जो एडम और ईव के परमेश्वर के साथ एकताई जो मेल मिलाप होता था, शैतान ने उसको फोकस किया और वो एकताई को तोड़ा। और जब हमारे लाइफ में भी जब हम मिलकर परमेश्वर के काम करता है, he tries to break that unison। because जब हम लोग एकताई में मिलकर परमेश्वर के काम करता है तो हम लोग जो परमेश्वर के कार्य है उसको बहुत जोर तोड़ से आगे बढ़ा सकता है। and that is why God reminds us that let us not give up the habit of meeting together। हम लोग परमेश्वर के नाम से एक दूसरे से मिलना नहीं छोड़े। लेकिन जो शैतान है वो हमें दिखाता है कि जब हमें मिलने का समय आता है, he shows us something else which is more interesting, ताकि हम लोग उसके जो मिल के उसके महिमा करें। we don't do that। अगर हम लोग देखता है बुक ऑफ एक्ट्स में जो लोग वहाँ पर मिलकर अपर रूम में जाकर एकताई में होकर प्रार्थना करता था, उसमें से कोई जाकर मछली मार सकता था, कोई जाकर कुछ और कर सकता था, लेकिन परमेश्वर ने उनको आज्ञा दिया कि जाकर एकताई में रहो। और वो जो एकताई में मिलकर वहाँ पर प्रार्थना करता था, परमेश्वर के जो आत्मा ऊपर से उतरा वो हर एक को जाकर छुआ। तो आज जब हम लोग परमेश्वर के एकताई में रहता है, it touches each one of us, it gives each one of us a separate gift, it gives us each a power। तो जो वचन आज हम यहाँ पर प्रचार करना चाहता है वो दो चीजें। when we realize that we are in a situation where we are surrounded by people who are not right in the sight of God, जो हम लोग पहले एग्जाम्पल में देखा रहा, if we are surrounded by people who are not right in the sight of God, हम लोग के अपने लाइफ को वहाँ से निकाल कर परमेश्वर के साथ जोड़ना है। और दूसरा चीज जो हम लोग देखता है, इट्स वेरी इम्पोर्टेंट कि जो लोग परमेश्वर के साथ जुड़े हैं, हम भी अपना लाइफ उनके साथ जोड़े ताकि हम लोग एकताई में मिलके परमेश्वर के सेवा कर सके, एक दूसरे से ताकत पा सके। क्योंकि अगर हम लोग जो लोग को देखते हैं, the people that God was speaking and was blessing them, जैसे नोआ को देखता है, क्यों परमेश्वर ने नोआ को चुना? क्योंकि उसका जो जिंदगी था वो परमेश्वर के लिए परमेश्वर के नज़र में सही था। फिर आगे अगर हम लोग जाकर देखता है नेक्स्ट पर्सन जिसपे बाइबल काफ़ी फोकस करता है वो है अब्राहम। परमेश्वर ने अब्राहम को क्यों चुना? क्योंकि वो परमेश्वर के नज़र में सही था। he had faith in God। उन्होंने अपने बेटों को भी नहीं ताका, उनको भी सेक्रीफाइस करने के लिए तैयार हो गया
तो वो परमेश्वर का जो भय है करता रहा और उसको बात है वो सुनता रहा. And that is why God chose him and decided to bless him. और फिर अगर हम लोग आगे भी देखते जाते हैं तो परमेश्वर उनको चुनता रहा जिसका जो जिंदगी है परमेश्वर से जुड़ा रहा, जो परमेश्वर से भय रखता रहा. और फिर अगर हम लोग नया नियम में जाकर देखते हैं तो हम लोग कह सकते हैं कि when God chose Paul को जो जिंदगी रहा वो परमेश्वर में सही नहीं था, क्योंकि he was going around and persecuting God's people. Paul was going and killing the people of God, but God still decided to select Paul. Why? Because God इतना जानता रहा कि जब वो Paul को चुनेगा, then he will save God with all his heart, mind and soul. And that is why God went and picked Paul. He said that you're not going to prosecute my people anymore, but you're going to save me. और हम लोग देखता है उसके बाद जब पौल हुआ, परमेश्वर ने जब उनको वहाँ से उठाया तो वो जब परमेश्वर का सेवा करा, पूरा अपने दिल से सेवा किया. जब उसको होली स्पिरिट आकर बताता था कि तू वहाँ नहीं जाओ, वहाँ पर डेंजर है, तुम्हारा जिंदगी का भी खतरा है, तो पौल जो है वो घूम कर बताता था कि अगर हम नहीं जाएगा तो और लोग हैं वो कमजोर पड़ जाएंगे, वो पीछे हट जाएंगे. And he didn't care about his life. He went and did what was best for God. He wanted to save God. तो हम लोग बात देखता है जो परमेश्वर जिनको उठाकर bless करता था, they were not usually random people. वो उसमें एक common trend रहता था कि these were people that were either honoring God. अगर हम लोग डेविड के लाइफ में भी देखता है तो वो भले भेड़ बकरी चढ़ाता था लेकिन वो परमेश्वर को वर्शिप करता था हर समय. तो डेविड को वहाँ से निकालकर उसको भी ब्लेस किया और बताया कि he will be the next king. तो अगर आज हम लोग परमेश्वर के लाइफ से कुछ अगर हम लोग ब्लेसिंग, परमेश्वर का ब्लेसिंग चाहता है अपने जिंदगी में, it's very important that we start praising God, we start honoring God, we start saving God. आज जो चाहत हम लोग रखता है, जो ओना करना चाहता है, it's very important that we start honoring God. It's very important that we start saving God with all our heart, mind and soul. क्योंकि जबले हम लोग अपना दिल से परमेश्वर के सेवा नहीं करेगा, God knows our heart. अभी अगर हम कोई के बारे में जानना चाहता है तो I'll probably have to see their facial expression and make a best guess कि उसका दिल में क्या चलता है. लेकिन हम कोई के दिल में हल के नहीं सकता जाने. कभी कभी हम लोग कोई के बारे में सोचता है कि he's there for me, but लेकिन वो दिल में उसका क्या नहीं सकता जाने. लेकिन परमेश्वर जो है वो हमारा दिल को जानता है. आज हम अपने दिल में क्या रखा है वही परमेश्वर के लिए इम्पोर्टेंट है. हमारे लिए जो कैरेक्टर दिखाएगा वही से हमें जीना पड़ेगा. लेकिन परमेश्वर जो है he knows our heart and that's the only thing that's important. What's on the outside doesn't matter to him, but what's on the inside is what matters to him. तो आज अगर हम लोग परमेश्वर के साथ रिश्ता बनाना चाहता है, आज अगर हम लोग उसको वर्शिप करना चाहता है, तो ये बहुत ज़रूरी है कि हम अपना जो लाइफ है बहुत भारे के ज़िंदगी इम्प्रूव करें. और उससे कई ज़्यादा इम्पोर्टेंट है कि हम अपना दिल को बदले ताकि हम अपने आप को जो एक लिविंग सेक्रीफाइस है परमेश्वर के लिए वो बन सके और परमेश्वर हमें ब्लेस कर सके और हमें इस्तेमाल कर सके कि हमारे लाइफ से कोई और का ज़िंदगी भी संवर सके. तो आज हम यही हम लोग के बीच में छोड़ेगा और सबसे यही रिक्वेस्ट करेगा कि आज हम लोग देखें नहीं कि हमारे फैमिली परमेश्वर के साथ रिश्ता कैसा है, हमारे फ्रेंड्स का जो है परमेश्वर के साथ रिश्ता कैसा है, लेकिन आज ये बहुत ज़रूरी है कि हम अपने आप को एक निकाल के
अगर हम लोग इंडिविजुअलिटी के देखता है, हम लोग अपने निकाल के हम लोग परमेश्वर जो हम लोग के चाहता है, जो रिश्ता बनाना परमेश्वर हमसे चाहता है, आज हम पहले अपने आप को वो रिश्ता सही करें और फिर एकताई में मिलके हम लोग परमेश्वर के जय जयकार कर सके, ताकि जब कोई ढीला होता है तो हम उनके लिए गैप में खड़ा होकर उसके लिए प्रार्थना कर सके, उसको ऊपर उठा सके। और जब हम गिरा रहता है तो कोई और हमारे लिए प्रार्थना करके हमें उठा सके, तो हम एक दूसरे के साथ मिलकर जो परमेश्वर के काम है उनको आगे बढ़ा सके। तो यही हम आज हमारे बीच में छोड़ेगा और सबके ये करेगा कि अपने लाइफ को सर्च करे और ये सवालात करे कि आज परमेश्वर अगर हमारे ज़िंदगी में देखता है तो would he be as upset as the people that were around Noah, कि आज वो हमें हर वो जो डिस्ट्रक्शन के बीच में से निकाल कर लेके जाके सेफ प्लेस में रखना चाहता है। Praise the Lord. परमेश्वर को धन्यवाद देते हैं इस वचन के लिए। वन ऑफ द थिंग्स हम इसमें देखते हैं कि परमेश्वर ने जब इस दुनिया को बनाया था, when he created the heavens and the earth and the people, basically Adam and Eve, and he gave them full control of the earth basically, and it was a privilege, but they abused their privilege by disobeying God's word. परमेश्वर के वचन के अनुसार नहीं चले और वो लोग को परमेश्वर ने उस जगह से निकाल दिया। So they were basically in a heavenly place, right? And they were basically kicked out of that place in because of their sin. And we, as human beings, we all suffer through that. We all have that sin seed in us. When we are born, that is there, and as we grow, that seed grows, and it as we mature, that seed matures, and it brings out all the. We don't have to learn from others. It is there, and it will make you do things that is against God's will. But God made a way through Jesus. Amen. एंड यहाँ पर जब हम देखते हैं जेनेसिस 6 में जब नोआ को परमेश्वर ने चुना, नोआ was not a perfect person, but he found favor in God's sight. Right? Maybe he was just on the borderline or just above था कि परमेश्वर ने देखा और परमेश्वर ने उसको चुना. See, we all are like that. This morning I was thinking about something. No, how did I come to know the Lord? कैसे मुझको जाना? I am a sinner. I have done so much that I wouldn't even want to talk about. Right? But it is by the grace of God that I have been saved. चाहे दुनिया हमें still हमें वो stamp लगा देगा कि वो एक पापी मनुष्य है, but God will not, because He erases that sin from our life. He says, come to the throne of grace and ask for forgiveness, and He's just and ready to forgive us of all our unrighteousness. सभी पाप को क्षमा कर देता है. Let's put it this way: if Adam and Eve didn't play the blaming game, if they had said, Lord, yes, we are sorry, and we have done something that is against that was against your word, but नहीं, जब एडम से परमेश्वर ने पूछा, एडम ने बोला the woman that you gave me, परमेश्वर को blame कर दिया, right? The woman that you gave me. And then Eve से पूछा क्यों ये किया? And Eve says, oh, the Satan made me do it. How many times we have seen things like that कि हम लोग blaming game कर देते हैं. Until we own up, until we say, yes, I have sinned, I have done something wrong, and until then God is not going to be able to do anything. Again, जैसे मैं पहले बताया था, I didn't know about the message or anything like that, but this is what the Spirit of the Lord put in my heart, the songs, जो selection था, and all those things. When we
walk by the Spirit, right? वो हम लोग के लीड करता है, गाइड करता है. What God put in my heart, we put in Ezekiel's heart. We met up last night, but we never talked about कि उसका message क्या रहेगा. And I never said what songs I had. I didn't even have the songs until this morning. And the Lord knows everything. परमेश्वर सभी कुछ जानता है. He orchestrates everything in our lives when we allow Him to do that. But जब हम लोग उसको नहीं allow करेगा, we try to do things our way, we will suffer. There will be no peace. There was one of the songs जो हमने बहुत पुराना song रहा, उसमें forgot all the lyrics, but one of the thing was जब परमेश्वर के ऊपर हम भरोसा रखता है तो वो हमें लीड करेगा, वो गाइड करेगा. This is paraphrasing it. That's what it meant. In English chorus था. And I'm gonna look for that song and find out where it is, like कहाँ से मिल सकता है. But anyways, ये परमेश्वर जब हमारे जीवन में आता है, हमारा जिंदगी बदल जाता है. Amen. परमेश्वर को धन्यवाद देते हैं इस वचन के लिए. आज भी हमें रिमाइंड करता है कि हम लोग लौट आए, लौट कर परमेश्वर के पास आ जाए. Hallelujah. Thank you, Jesus. Thank you, Jesus. Thank you, Jesus. धन्यवाद देते परमेश्वर को. We'll sing one more song and then we'll finish off. जिंदगी मेरी बदल गई जब से मसीह को पाया है. हिल गई है कलियां नई, यीशु बाहर लाया है. जिंदगी मेरी बदल गई जब से मसीह को पाया है. हिल गई है कलियां नई, यीशु बाहर लाया है. जीवन है क्या पलरी तो पक्का, किसने जाना होगा क्या कल का. जीवन है क्या पलरी तो पक्का, किसने जाना होगा क्या कल का. घड़ियां सुनहरी फिर न लौटेगी, घड़ियां सुनहरी फिर न लौटेगी. मुक्ति और जीवन बुलाया है. जिंदगी मेरी बदल गई जब से मसीह को पाया है. हिल गई है कलियां नई, यीशु बाहर लाया है. मार्गे हमारे वो दर्शक रहेगा, कदम डगमगाए हाथ वो थामेगा. मार्गे हमारे वो दर्शक रहेगा, कदम डगमगाए हाथ वो थामेगा. भटके हुओं को राह दिखाने, भटके हुओं को राह दिखाने इस धरती पे आया है. जिंदगी मेरी बदल गई जब से मसीह को पाया है. हिल गई है कलियां नई, यीशु बाहर लाया है. ओ जिंदगी मेरी बदल गई जब से मसीह को पाया है. हिल गई है कलियां नई, यीशु बाहर लाया है. जीवन की रोटी और अमृत जल को कैसी भरपूरी से देता हूँ हमको. जीवन की रोटी और अमृत जल को कैसी
जिंदगी मेरी बदल गई जब से मसीह को पाया है, खिल गई है कलियां नई, यीशु बाहर लेकर आया है। अभी हम जानते हैं अभी विंटर के समय है, and pretty soon we will have spring, and then later spring में हम we will start doing gardening, planting वगैरह करेगा, and summer time क्या मिलेगा हम लोग को, flower gardens में हम लोग के flowers मिलेगा, and then उसको हम लोग को weeding करना है, maintain करना है, and so that it looks beautiful. How did that garden get in that place like that? Because you went there and you did your part so that the garden grows. Amen? उसी तरह प्रभु यीशु मसीह हमारे जीवन में आया ताकि हमारे जीवन में भी वो फल आए. That we have success in our lives. बाइबल हम लोग को बताता है when we walk in the ways of the Lord, whatever we do, God is going to bless you. परमेश्वर तुम्हें आशीष देगा. Amen. Let's look to the Lord in prayer. Heavenly Father, we thank you once again this afternoon, Lord, for your love and your mercy, O God Almighty. We thank you for what you have done for us, O God, and I give you glory and honor. Father, we thank you for coming into our lives, O God Almighty, showing the way, O God Almighty, that we are reconciled to our Heavenly Father. We thank you, Father, in Jesus' name. In Jesus' name, Lord, as we go to our various homes, Lord, but not from your presence, O God Almighty. Bring us together at the appointed time, Lord, that we will serve you, Lord, to be in your presence once again. In Jesus' name we pray. Amen. Amen. God bless you all, and we'll see you soon.